जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंठे बिराजो हि दादा, चिराओ सबड़ी भाषा। कंठे बिराजो हि दादा, उचराओ सबड़ी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुतराओ मन वाणी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मन वाणी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उचराओ सवड़ी भाषा। काढजो अनुभवनु तारा, तोड़े मन कुवेण खाटा। काढजो अनुभवनु तारा, तोड़े मन कुवेण खाटा। पोते पोताना जोवा, अवणिया वाणी न खाचा। पोते पोताना जोवा, अवणिया वाणी न खाचा। कंठे बिराजो हे दादा, उचराओ सवड़ी भाषा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़ कांटा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़ कांटा। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। निर्दोषी वाणी मीठ, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे बिराजो हे दादा, उचराओ सवड़ी भाषा। चारित्र्य बड़नी ओळ, संचारे निकळेली वाचा। चारित्र्य बड़नी ओळ, संसारे निकळेली वाचा। विचारुचारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। विचारुचारणे आचारे, वर्तावो परमार्थ शास्त्रा। कंठे बिराजो हे दादा, उचराओ सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलाइए प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય
એવી પરમ શક્તિ આપો અને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક સાધુ કે આચાર્યનો અવણવત અપરાધોને ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવે કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તંત્રી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંત્રી ભાષા બોલો તો મને મૃદુરુચિ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિરારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ વગર ગમે તે નિર્ધારી છે તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવે કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં ન કરાવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિર્ધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ કિંચિત માટે પણ અવણવત અપરાધ અવિનય ન કરાવે કરતા પ્રત્યેનો અનુમોદનની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, જગત કલ્યાણ પર નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ દાદા હાજી. ફ્રીમાં તો બોલાય પ્લીઝ. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આય, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્રાયણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લવે સવ એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનકારો, સૌ પાવપણાસનો, તવ પાવપણાકમ, મંગલાણંચ સૌવેસીમ, મંગલાણં કર્તવ્યેતિ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દક્ષ हे राधा भगवान, मैं कभी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर रूप फायदा मुझे मेरे देह को, यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा लायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबतों कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटा। शक्ति दी प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए करो, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ ज्ञान व्यवहार में विश्वसनीय और द्वार रहूंगा ताकि मैं दाता गण जैसा परम उत्कर्ष में नोबिलिटी बन पाऊं। ये दादा गण अपने माता पिता की बात सुनने को संकल्प लेता हूँ। मैं कभी नामका सुझाव नहीं लूंगा जो समझ रहना है। जय सच्चिदानंद। प्रिया आनंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में संबंध में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे पौनी शक्ति है। जय सच्चिदानंद। दक्ष हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान,
हम हैं आपके बच्चे, हम हम है हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके दक्ष, हे श्री दादा गुना पे लगो दक्ष लगे, हे श्री दादा गुना परमानेंट दक्ष टेम्पररी, हे श्री दादा गुना प्रियो दक्ष रिलेटिव है सच्चिदानंद। प्रिया, हाँ जी सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दाता भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. યસ. Jai Sachidan, thank you. Shreya, Daksh, the Daksh about oral, very good. आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है, 1 और 2 डीज इज ओके। शैलेश आनंद जी, हाँ जी। अभी चल रहा है सिंसियरिटी, सुबह से उठ के हम्म, स्कूल से आते के क्या क्या करते हैं, तो ये तोरल का रिपोर्ट है, वेरी गुड। तो ये बच्चे लोग सिंसियरिटी इज गेटिंग वेरी गुड, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर। Yes, Dada? ना जो Okay. Yeah. So कभी कभी D, I mean, it varies up and down, but that's okay. Once in a while, नहीं होता है. Okay. तो आज कैसा रहा श्रेया? हाँ, आज मुझको स्कूल होमवर्क, एक्स्ट्रा स्टडी और होमवर्क का टाइम टेबल में इम्प्रूवमेंट कर। Good. दक्ष, आपका तो सब ठीक है? हाँ दादा, मैं अगली वीक से सबको नई रिपोर्ट बना दूंगा, और आज मेरा सब चीज में A ग्रेड है। Very good. साक्षी बाब, आज मेरा सब में A ग्रेड है। क्या हो गया जी साक्षी बाब को? का फोन लेना। How come you are becoming more sincere day by day? कि बस हम साक्षी बाब, बातें कर रहे थे, थोड़ा बहुत चीनी सर का कर लिया, फिर से खाना खाना बाकी था, खाना खाने से बस बैठे। तोरल, तोरल, okay, okay. So very good, huh? साक्षी बाब, सब लोग very good. You're getting more sincere, yeah. तो देखो, दादा, we हाँ जी। started with ये सिंसियरिटी और इंटेंट। तो इंटेंट को लोग दिखाया जाके जो सुबह उठ के प्रे करते हैं, एक इंटेंट करने का है तो हो जा सकता है। तो थोड़ा अब उसके बात करो, बाद में कलम 3 की बात करने की है। ओके, तो वो लोग क्या सोचते हैं इंटेंट के बारे में? आपको पता है, इंटेंट मैंने कोई भी कार्य के पीछे अपना जो हिंदी में बोलते मकसद होता है, उसको हेतु भी बोलते हैं। इनसाइड हम जो हेतु नक्की करते हैं, पर्पस नक्की करते हैं, हमारा इंटेंशन भी बोल सकते हैं उसे, कि हमारा इंटेंशन क्या होता है। कौन बताएगा मुझे? हिताक्षीबा बताएंगे, श्रिया बताएंगी, कौन बताएगा? तीनों बताएगा, हिताक्षी बा। ओके, वो एडजस्ट होती है। श्रेया दी, श्रेया बहन, नहीं सुनाई देता है। आवाज नहीं आती आपकी। ओके दक्ष, इन द मीन टाइम आप बोलिए। दादा, मैंने नोट्स नहीं लिखे हैं। क्या बोला? दादा ने नोट्स नहीं लिखे हैं। मैं नहीं आपको नहीं कल नहीं नहीं नहीं, इंटेंट, क्वेश्चन है, आपने बताया था इंटेंट, तो उसमें आपका उसको आपको क्या मीनिंग लगता है इंटेंट का?
ओके, आप सोचो तब। ताकसीबा आ गई है। ताकसीबा, ताकसीबा, कैन यू हियर? आई थिंक शी इज क्या आवाज आ रही है मुझे याद नहीं आ रहा। आपका तकसीबा की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। हम्म, श्रेया, नहीं, आपको आवाज साउंड नहीं नहीं आ है। रही कुछ। हेलो। श्रेया, नहीं आ रही है आवाज। ओके, ताकसीबा, आपको कनेक्शन है? हाँ, तो इंटेंट का मीनिंग क्या होता है आपका? योर डेफिनेशन। याद नहीं आ रहा। हम वीडियो स्टॉप करते हैं आपका। ठीक। अब आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ी आई। इंटेंट का मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक। तो क्या करें, हम बात करें रजनी दादा? हाँ, करो करो। तो देखो, हर एक कार्य के पीछे हमारा अंदर कोई हेतु, पर्पस, एम या इंटेंट होता है। आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ाई करने। पढ़ाई क्यों करना है आपको? तो किसी को लगता है तो पेरेंट्स भेजते इसलिए जाना पड़ता है। किसी को लग किसी का एम या इंटेंट होता है कि मैं पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ूं कि न केवल मेरी जिंदगी अच्छी हो, मगर मेरे फैमिली की, मेरे मित्रों को, आसपास वाले को, देश को और विश्व को, सबको मैं हेल्पिंग हो सकूं। तो जैसा आप हेतु या इंटेंट या उसका नक्की करोगे, वो नेचर में एक्टिविटी बहुत ज्यादा महत्व की नहीं होती है। एक्टिविटी के पीछे का जो इंटेंट या हेतु होता है वो महत्व का होता है। तो हमारे सुबह से शाम तक के सभी कार्य के पीछे कोई न कोई इंटेंट होता है। कोई बार आप पापा मम्मी से अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, मगर आपका इंटेंट कोई बार ऐसा होता है कि चलो डैडी को जरा खुश करके ये चीज लेनी है मुझे, डैडी मुझे ये चीज दिलवा देंगे, खुश कर दूं उनको। तो ये भी एक इंटेंट होता है। किसी का इंटेंट होता है नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स को सुख देना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये इंटेंट। अच्छा, एक और एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। मेरे जैसे 3-4 डॉक्टर हैं, सब डॉक्टरी करते हैं, सब सर्जरी करते हैं। क्या सबका इंटेंट समान होगा? एक का इंटेंट है मैं तो बहुत साल पढ़ाई में लगाए हैं, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है, बड़ी BMW, पता नहीं, मुझे तो कार के नाम भी आते नहीं रजनी दादाजी। तो ये लाना है, ये लाना है, चलो जल्दी जल्दी जो आए पैसा बनाना है। किसी का हेतु होता है कि भाई नहीं, दर्दी की जो आए उसको सुख शांति देना है, उसकी सेवा करनी है। तो ये चीज कुदरत में हेतु, इंटेंट बहुत महत्व का है। आप सत्संग में आते हैं तो आपका इंटेंट है कि दादा भगवान का विज्ञान समझे, उनके जैसे हम हो पाए, सब आगे बढ़े। तो ये आपका इंटेंट अच्छा है। तो ये ऐसे ही तरीके से आपको देखना है। किसी से हम मित्रता रखते हैं, किसी से संबंध रखते हैं, तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई इंटेंट होता है। किसी का इंटेंट ऐसा होता है कि भाई पैसे वाले मित्र है तो पार्टी बार्टी में खाना बना खिलाएंगे, वो पैसा दे देंगे, हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, घर पे नहीं मिलता है, ये हमारा फ्रेंड अच्छा है, सब पार्टी में दिलवा देता है। किसी का इंटेंट ऐसा होता है कि नहीं, मैं अच्छे फ्रेंड रखूं, संस्कारी रखूं, पढ़ाई में आज जो होशियार है ऐसे रखूं तो मुझे भी उसके जैसा स्टिमुलस, इंसेंटिव मिलेगा आगे बढ़ने का। तो हर एक चीज के पीछे अपना हेतु रहता ही है, होता ही है। और इसके ऊपर यदि हमारी जागृति रहे तो दादा भगवान ने बताया कि हेतु, इंटेंट ऐसा रखें कि एक तो मन वचन काया से औरों को सुख हो, हेल्पिंग हो सके। दूसरा, मन वचन काया से सिंसियरिटी का हेतु, इंटेंट हम रखें। और तीसरा, हमारे शुद्धात्मा पक्ष का इंटेंट रखेंगे।
तो ये मैंने एक बात समझाई। अभी उसके ऊपर से आप लोग सोच सकते हो कि सब चीजों के पीछे इंटेंट कैसे होता है, क्या होता है। एक्टिविटी सब लोग करते हैं, 5 लोग मंदिर में गए हैं, आपको लगता है पांचों को इक्वल समान फल मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? चोखा वही चढ़ाते हैं, फूल वही चढ़ाते हैं, इतना ही टाइम मंदिर में बैठते हैं, क्या सबका फल समान होगा या अलग अलग होगा? दादा अलग अलग होगा। क्यों? होगा। क्यों? क्योंकि सबके इंटेंट अलग अलग है। क्या है? इंटेंट अलग अलग है। हाँ, और जैसे इंटेंट होते हैं ऐसे भाव बनते हैं, ऐसा अंदर का ध्यान भी बनता है। क्या होता है? किसी को सबक सिखाने का इंटेंट होता है तो भाव भी बिगड़ता है और अंदर का ध्यान भी बिगड़ता है। किसी को हेल्प करने का इंटेंट है तो भाव भी अच्छा होता है, अंदर का ध्यान भी अच्छा होता है। ये सब जुड़ी हुई चीज है। पर उसमें हम इंटेंट पर ध्यान रख के उसको यदि हम उसको चेंज करें तो बहुत सारा काम हो जाएगा। अपनी जो स्पीच होती है, स्पीच भी अपने इंटेंट के अनुसार आती है बाहर। क्या होती है? हेतु, अपना जो मकसद है, अपना जो इरादा है। श्रेया, समझ में आया? हाँ हाँ कि ना? हाँ। हम्म। तो कई लोग ऐसा इंटेंट भी तो रखते हैं। शैलेश दादा, हाँ जी। आप सुबह उठ के क्या इंटेंट क्या करना मांगता है बच्चे लोग को? सुबह उठ के तो आपने जैसे तय किया है कि भाई एक तो मैं उठ करके नियमित रूप से जो मेरा समय दूसरा व्यवहार का चालू, उससे पहले विधि वगैरह करके भावना कर लूं कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो, मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे सभी को सुख हो। फिर जो आपने डिसाइड करते हैं आप पूरे दिन में कि मुझे ये सत्साधन करना है, विधि करना, जो भी करना, और बाकी पढ़ाई का जो सिंसियरिटी। पर सबसे महत्व की चीज, जो भी इंटेंट हम नक्की करें उसको सिंसियर रहे और समय का बहुत अच्छे ढंग से हम अच्छा यूज करें, समय को बर्बाद ना करें। इधर उधर अभी कोई काम नहीं है, आज पीरियड फ्री है, आज ये करूं वो करूं, तो समय बर्बाद करना वो अपने इंटेंट के विरुद्ध जाता है। सबको मालूम पड़ गया? हाँ दादा। हाँ, और अपना लिस्ट है ना वो बोल देने का, मैं सब मेरी सिंसियरिटी सब जॉब में सब टास्क में करने का है। ओके, वेरी और गुड। जैसे मैंने बताया, आप दादा भगवान से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, हे सर्ववितराग और निष्पक्षपाती शासन देव देवियां, आप हमें पढ़ाई करने की शक्ति ऐसी और इसलिए दीजिए कि न केवल मेरा खुद का जीवन अच्छा और उज्जवल बने, मगर मैं मेरे परिवार को, समाज को, मित्रों को, देश को और विश्व को उपयोगी हो सकूं, उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, जगत कल्याण में काम में आऊं। ऐसी मेरे में शक्ति और सब ज्ञान सब डेवलप हो, ऐसी पढ़ाई करने की मुझे शक्ति दीजिए। आप अकेले के लिए भावना करोगे तो सीमित मिलेगा, सबके सुख और हेल्प के लिए भावना करोगे तो बहुत असीमित मिलेगा आपको नेचर में से। ओके, वेरी गुड। तो अभी मालूम पड़ गया बच्चे लोग, सो इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी दूसरा, अभी कलम 3 चल रहा है शैलेश दादा। क्या चल रहा है? कलम 3, 3G कलम कलम। हाँ, तीसरी कलम, हाँ। तो उसमें क्या मिस्टेक्स अब होती है वो करने का है। तो उसमें अवर्णवाद, अपराध, अभिनय का मिस्टेक्स हो सकता है। तो हम्म, उसका मीनिंग अभी बच्चे लोग को पूछेगा और आपको वेरी शॉर्ट मीनिंग और एक भी एग्जांपल देने का। ओके। जी। और ओके श्रेया, अवर्णवाद, अपराध, विनय का आपका, अभिनय का क्या आपका मीनिंग है आपको? हम अवर्णवाद का मतलब कि हम किसी किसी के बारे में बुरा बोले। अपराध का मतलब जो भी हम भूल करते, और अविनय का मतलब डिसरिस्पेक्ट। वेरी गुड। दक्ष?
हाँ, अपराध का मतलब उनको किसी को बुरा नहीं बोलना, और अवर्णवाद का मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट। ये हिताक्षी बा हाँ, अवर्णवाद यानी कि जैसे उसका वर्णन हो उसका उल्टा वर्णन करते हैं। अपराध यानी कि हम उसके प्रति जो मिस्टेक करते हैं, और अविनय यानी कि डिसरिस्पेक्ट। ये अव्यय। ओके, आपने सुना शैलेश दादा अभी हाँ वेरी सिंपल मीनिंग और जी। एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन का क्या आप थोड़ा हाँ बताइए। देखो, ये हमारे सबका मनुष्य का स्वभाव जो है, और इससे जो गलतियां होती हैं, तो इसके लिए दादाजी ने 9 कलम दी। तो दादाजी ने तीसरी कलम में बताया कि कोई भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी आचार्य का, तो हम पहले ये देख लें कि क्या मेरे से किसी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय, अविवेक होता है क्या। तो बहुत जागर हम समझदारी से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादा भगवान और मेरे दादा भगवान वाले ही सही है, बाकी सब समझते नहीं है। तो कोई मुस्लिम उपदेशक होगा, कोई क्रिश्चियनिटी का धर्म उपदेशक होगा, कोई और होगा, तो मेरे मन में उसके प्रति जितना चाहिए उतना आदर नहीं रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां मैं जागृत नहीं हूं। मुझे लगता है कि दादा भगवान और दादा भगवान वाले सही है, बाकी सब समझते नहीं है। तो ये जो मेरी गलत समझ है, वो मुझे कोई भी देहधारी उपदेशक के प्रति, साधु साध्वी या आचार्य के प्रति ये गलतियां करवाएगी। तो मुझे उसका ध्यान रख। अच्छा, अवर्णवादी हिताक्षीबा ने सही बोला कि जो है वो नहीं, मगर उससे अलग या ऊंधा चितरना या वर्णन करना। क्यों हम ऐसा करते हैं? तो कि हमें उसको नीचा दिखाना है, हमें हम जो मानते हैं उसको ऊंचा दिखाना है। कोई भी कारण से हमारा इसके प्रति, उनके प्रति प्रेम भाव के बदले द्वेष भाव या भाव भाव है। तो इसकी वजह से हम जो है उससे उल्टा बोलते हैं, वो उसको अवर्णवाद कहते हैं। अपराध मैंने उनके सामने हम कुछ ऐसा करे जो अपराध की कक्षा में आए, और अविनय अविवेक तो सब समझ सकते हैं। अच्छा, इसका संक्षिप्त में क्या है? तो मैं किसी भी, देखो दो चीज है कि पहली केजी से लेके पीएचडी तक के क्लास हैं। आप लोग आज 5वीं स्टैंडर्ड में, 8वीं स्टैंडर्ड में, कॉलेज में आ गए। क्या केजी वाले टीचर गलत है? उसको, उनको देख के आपको हंसी आएगी कि ये कैसा पढ़ाते हैं? मगर आप भी तो कोई बार केजी में थे, केजी के लिए उनका टीचर ही सही है। इसी दृष्टि से आज मैं आगे बढ़ गया, मगर जगत में सब तरीके के डेवलपमेंट के लोग हैं, उनके लिए उनके धर्मगुरु वो लाइट दिखाने वाला है, वो सही है। तो मुझे समझना चाहिए और उनके प्रति अभाव भाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कि वो उनको नुकसान करेगा या मुझे। तो बोले कोई भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी के प्रति मैं ये गलतियां करूंगा तो पहले मेरे शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन पर धूल पड़ेगी, मेरा नुकसान होगा। सो ये बात कहना चाहते हैं। और ये तो हम दादा के महात्मा हुए हैं, तो बहुत एक्सप्रेसिवली शायद नहीं करते हैं, मगर सूक्ष्म में और हमारे मनोजगत में और हमारे भाव जगत में और हमारे कहीं ना कहीं ये आ जाता है। ठीक है। हाँ, और दूसरा भी आप बताया था, दूसरा आपने के हाँ जी। जो कुछ आपको टीच करता है वो भी जी। उसमें आ जाता है। पेरेंट्स, बड़ी सिस्टर, हाँ। छोटी सिस्टर। या यस, कोई भी जो हमें आगे बढ़ने के लिए उजाला देता है, सिखाता है, गाइडेंस करता है, तो वो सब एक या दूसरे प्रकार के उजाला देने वाले हो गए। तो यस, उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये
ये अभी तो छुट्टी है, सैटरडे संडे तक। तो ये देखना आप अवर्णवाद अपराध अभिनय किधर करते हैं, घर में, बाहर से, फ्रेंड से, किधर भी। ओके, ठीक है, वो नोन लेने का। अव्यय, हाँ अभी से ये वीकेंड है तो जो आप पूरा लिस्ट आप बनाओ रिपोर्ट का। ओके, हाँ। दो चार चीज नहीं, आपका आज का क्या आप रिपोर्ट कैसा है आपको? अच्छा नहीं है, 2 चीज में डी है, किसमें डी है? एक्सरसाइज और सत्साधन। एक्सरसाइज तो चलता है, आप तो प्ले करते हैं, तो साधन में क्या हो गया आज? टीवी का टाइम हो गया था, मूवी का टाइम हो नहीं, गया था, इंटेंट नहीं था, आपको आज नहीं करने का इंटेंट नहीं था? इंटेंट था। ये कैसे हो सकता है शैलेश दादा, इंटेंट था? टीवी आपने आज कौन सी मूवी मूवी देखी थी आज? मूवी नहीं देखी। तो, तो फोन देखा था? फोन नहीं, नहीं देखा। टाइम किधर वेस्ट किया था आज? टाइम थोड़ी देर खेलने में, खेलने में। खेलने में वेस्ट नहीं होता है कभी। ओके, तो ये इंटेंट था तो क्या हो गया शैलेश दादा आज? इंटेंट था तो किसने नहीं करने दिया अंदर से, वो आपने रिसर्च की, जो वो जांच पड़ताल की कि इंटेंट था मगर करने किस, कौन अंदर थे जिसने नहीं करने दिया? मन की बात सुन ली मैंने। हाँ, मन की बात यानी, और वृत्तियां दूसरी बाजू ले गई, क्या किया? वृत्ति हमेशा दूसरी बाजू ले जाती है, चित्त दूसरी बाजू खींचता है। डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शंस। और एक, सबको ये रिसर्च करना, आप शिखर पर ऊंचे जाना चाहते तो ऊपर चढ़ने में मेहनत है कि नीचे गिरने में मेहनत है? ऊपर चढ़ने में। हाँ, पर ऊपर चढ़ने के बाद प्राप्ति कैसी अच्छी होती है। और नीचे तो आपने पैर ढीला छोड़ा, नीचे गिर जाओगे, क्या है? तो हाँ, नीचे तो कुदरत, मैंने थोड़ा, आप अजागृत रहे, थोड़ा ढीला छोड़ा, थोड़ा आलस को जगा दिया, अंदर वाले को कोई जगा दिया, तो वो गिरा देंगे आपको, क्या करेंगे? और गिरा। यदि अंदर ऊपर चढ़ना है तो दोनों पक्ष अंदर हाजिर है। सब रिसर्च करना, सब पक्ष अंदर हाजिर है। एक पांडवों का पक्ष भी है, एक कौरवों का पक्ष भी, एक सिंसियरिटी वाला पक्ष है, एक जो नक्की किया वो करना चाहिए ऐसा पक्ष है, दूसरा ऐसा पक्ष है। यार रोज रोज क्या रजनी दादा यार रिपोर्ट मांगते हैं यार, देते तो है, खेलना तो दो, अभी तो हमारा टाइम है, ये तो बहुत बांध देते। तो ये सभी पक्ष है अंदर, सब पक्ष होते हैं कि नहीं होते अंदर, सही बोलो। होते हैं। हाँ, तो सभी तरीके के पक्ष अंदर हमेशा होते हैं, उनके ऊपर आपको, हमें सबको ध्यान रखना है कि ये कौन है अंदर। चोर बोलते थे पहले, रजनी दादा चोर बोलते थे ना, अंदर कौन चोर है या नहीं है, किसको चोर बोलना वो आपको नक्की करना है। मगर अंदर कौन काम कर रहा है जो ये करने देता है और ये नहीं करने देता है, क्या होता है? करने देता है, नहीं करने देता। हाँ, शक्ति तो सब अंदर है, सब कुछ है, टाइम है, एनर्जी है, शक्ति सब कुछ है, मगर अंदर कौन काम करता है जो ऐसे करवाता है? अच्छा, रात को 11 बज गए हैं और अभी पार्टी का नाम आ गया कि चलो आइसक्रीम लाना है, केक लाना है, ये लाना है, वो लाना है, तो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे अंदर से? दौड़ेंगे। क्यों? तो कि इसमें वो करवाने वाले हैं, क्या है, इंटरेस्टेड, अंदर करवाने वाले हैं, वो दौड़ेंगे। हे चलो आज तो बढ़िया से बढ़िया आइसक्रीम ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये अंदर वाले की पहचान करो, बस इतना मैं बोल
सजेस्ट करना चाहता हूँ। अंदर वाले को पहचानो हाँ और फिर किसके पक्ष में सिग्नेचर करना है या किसके पक्ष में सिग्नेचर नहीं करना है वो आप सोचो क्या है। और अंदर वाले जैसे है ना ऐसे बाहर भी ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे अंदर है ऐसा ही बाहर ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? बाहर और ज्यादा मिले। हाँ फ्रेंड्स भी ऐसे मिलेंगे, ग्रुप भी ऐसा बनेगा और अंदर वाले वही तरफ खींचेंगे और फिर हम उंगली बाहर वाले की तरफ उठाएंगे। क्या करेंगे? बाहर वाले की तरफ। हाँ कि यार ये फ्रेंड आ गया और मुझे घसीट के खेलने के लिए ले गया। मगर दादा भगवान का एक सिद्धांत है कि अंदर परमाणु नहीं होते हैं तो बाहर कोई अपने को वो काम करवा सकता नहीं है। हाँ तो खेला नहीं खेला, किया नहीं किया, वो तो ठीक है, आज की छोटी बात है। मगर अंदर वाले को पहचानना वो एक बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात। अच्छा, अंदर सब अपने मित्र ही होते हैं कि अपने मित्र के स्वांग में दुश्मन भी होते हैं अंदर? दुश्मन भी होते हैं। हाँ कविराज ने लिखा है ना, ગુજરાતીમાં પદ છે ને, મિત્રને સ્વાંગે મહી દુશ્મન છે ત્યાં દાદાને સંભારો. છે કે નહીં? પપ્પા મમ્મીને પૂછીએ કે કયું પદ છે, શું કહેવા માંગે છે? ચાલો आगे चले। ओके, तो जरा ये इंटेंट जरा देखने का। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी, हैव अ गुड वीकेंड। જય સચ્ચિદાનંદ. जी, जी, हाँ।